Yesterday, I left you with a question, and the question was of time dilation, and you were supposed to find out the velocity of a spacecraft if the time dilation was of 0.001 seconds. Some of you just dropped me a WhatsApp message saying that it was not 0.00001. You can make this correction or you can try with that value as well. And then another interesting question I left for you was this, that instead of just spending 7200 seconds, which were there as proper time, that is actual time between 4 a.m. to 6 a.m., 7200 seconds, I said that what would have been the spacecraft velocity if the time on the spacecraft clock was not more than 7200 seconds but less than that. And even this difference of 0.001 seconds is not allowed physically. It means you were peeping into the future 0.001 seconds ahead. And that's why I said that this is not allowed. This is wrong. That's what is wrong inside this. Only one person replied me that the term in the denominator for time dilation formula will become negative, sir. And if you have under root of a negative quantity, it becomes imaginary. So the speed would become imaginary, and that's a problem, sir. Okay. So some of you replied. I really appreciate that. Now we are going to deal with what is called as Doppler's effect. The very first thing is we should understand what is Doppler's effect. And to do that, let us assume that there is a source of sound. Sound means sound waves, जिसके की vibrations are being sent in omnidirectional way. So when the source is not moving, let me just do this. When the source is not moving, आप देखें कि uniformly सभी direction में एक साथ vibrations जा रहे हैं. But when you see that this source starts to move towards right side, तो or towards left side, then towards the left side the frequency will increase, and towards the right side the frequency will decrease. You can see that change inside. When it starts moving, since things start to happen very frequently on left, and जो distance है आप देखें on the right increases. So it depends on motion of the source. It sometimes also depends on motion of the observer. Okay? We will relate it with the formula anyways. How we can relate it with a physical analogy? Let us say that I am observing using my eye and the source is moving away from me. So if the source is moving away from me, मुझे ऐसा लगेगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई. चीजें थोड़ी देर देर में आएंगी, जल्दी जल्दी नहीं आएंगी मेरे पास. सो लेट्स से इफ द फ्रीक्वेंसी वाज 10 हर्ट्ज, मुझे ऐसा लगेगा शायद वो 10 हर्ट्ज से कम है. आई वुड फील दैट, आई वुड नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स. वहीं अगर इसका जस्ट ऑपोजिट होता, इफ इट वुड हैव बीन कमिंग क्लोजर टू माय आई, तब मुझे लगता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. इसको आप एक छोटी सी एनालॉजी से समझ सकते हैं. क्या इसमें दिस रेड मैन has been selected as the president of United States, let's say, and जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनसे हैंडशेक करना चाहते हैं. So this man is just standing and people are just walking and shaking hand with him and then going. तो जैसे मान लेते हैं करीब 10 लोग इस तरीके से हाथ मिला पाते हैं. ऐसा प्रेसिडेंट सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो बड़ा समय लग जाएगा, इतने सारे लोग हैं. देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग अनदर स्ट्रैटेजी, एंड द स्ट्रैटेजी इज दिस: ही स्टार्ट टू मूव. अब इस पिक्चर में और इस पिक्चर में, अब आप मुझे बताइए इन दोनों पिक्चर्स में से ज्यादा आदमियों से हाथ कब मिलाएंगे मिस्टर प्रेसिडेंट? व्हेन ही वाज नॉट मूविंग तब, और व्हेन ही स्टार्टेड मूविंग तब? ऑब्वियसली आंसर इज कि व्हेन ही विल स्टार्ट टू मूव, he will shake hands with more number of people. It means when he will be moving towards people, the frequency of shaking hands है वो increase हो जाएगी. तो यहाँ से हम एक analogy ले सकते हैं. Similar to this, that if you have a source which moves, if it is stationary तो omnidirectional आपको frequency same दिखेगी, but if it starts to move, then towards the direction of movement frequency increases, and away from the direction of movement the frequency decreases. Fine. So
if you just associate this particular thing to the source of sound, जैसे siren है या ambulance का sound है, तो ये formula आता है, which is v or nu is equals to nu naught 1 plus v by c upon 1 minus v by c. Okay, so you can just take screenshot of it or replace nu by f, otherwise you can get confused with v and c. So I would do the same thing. अगर आपने screenshot ले लिया, it is fine enough. What I am going to do is this, that the frequency which an observer will observe will be equals to the actual frequency. F naught is the actual frequency, and then what you have is this 1 plus velocity upon c upon 1 minus capital V upon c. अब यहाँ पे you have to make some differences. जैसे what difference you have to include is this. The very first thing is that c over here is not speed of light, but it is speed of sound. Okay, we are using a different formula. So let me call this as cs. This is not speed of light, but this is speed of sound. Okay, then we have small v. Small v is the speed of observer. And then we have capital V. Capital V is speed of source. Speed of source. अब इनके आगे, like this is the actual formula. ये जो V है, इसमें अपने आप में भी साइंस हो सकते हैं, और ये कैपिटल V है, इसमें अपने आप में साइन हो सकते हैं. तो याद रखिएगा that स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग ऑन जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स है या मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स है. ठीक है. So if the observer is moving towards the source, then you will use positive. So this one is for towards the source. An observer is moving towards the source. And if the observer is moving away from the source, then you would use negative. Similarly, ये जो speed of source है, इसमें भी you can use two ways. It can be positive or it can be negative. अच्छा, यही फॉर्मूले में रखना है. ये नेगेटिव तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही, but you have to use another positive or negative sound. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? दैट द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में है ये सारी चीजें. तो ये फॉर्मूला यू कैन कीप फॉर डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड. Instead of measuring frequency to be f naught, which you would have measured if both source and observer were stationary, अब velocity दोनों की zero कर दीजिए. Small v और capital V, if you would put zero, okay, what you will get is, if you will put small v and capital V equals to zero, तो ये हो जाएगा केवल f naught के बराबर. वहीं मान लेते हैं कि the source is not moving, only observer is moving. So source नहीं move कर रहा है, तो it will be 1 plus v upon cs, and this will be just 1. ठीक है. सो अब डिपेंड करेगा कि ये 1 प्लस समथिंग होगा या 1 माइनस समथिंग होगा. अगर दूर जाएंगे यानी यू विल मूव अवे, द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, तो ये 1 माइनस समथिंग होगा यानी कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. और अगर पास आएंगे, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. वैसे ही जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट अगर लोगों को से हाथ मिलाने के लिए उनके पास जाएंगे, तो ही विल शेक हैंड्स विद मोर नंबर ऑफ पीपल. Okay, otherwise if he'll move away from those people, then the people will take more time, तो frequency भी कम हो जाएगी. So this formula you can keep and take a screenshot of it. आप notes ले रहे होंगे मेरे ख्याल से. This is Doppler's effect in sound, but we have to do something which is much more different from Doppler's effect in sound. Okay, important चीजें नोट करने वाली ये है कि जो Doppler effect है sound में, that depends whether source is moving, whether observer is moving, or both are moving.
इन दोनों तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। सोर्स तो नहीं मूव कर रही, ऑब्जर्वर तो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ, फीचर बता रहे हैं आपको। और अगर ऐसा है दैट इट डिपेंड्स ऑन वेदर सोर्स इज मूविंग, वेदर like source is moving or observer is moving, then it seems that it appears to violate the principle of relativity. All that should count is the relative motion, यानी हमें केवल एक वेलोसिटी लिखनी चाहिए थी, relative velocity v। आपने v कैपिटल अलग से और ये स्मॉल v अलग से क्यों लिखा? केवल relative velocity v21 v2 ऐसे करके क्यों नहीं लिखी? ऐसे तो फॉर्मूला नहीं होना चाहिए था। उसका जवाब ये है, साउंड वेव केवल मटेरियल में चलती हैं और मटेरियल में अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती हैं। इंसान अलग तरीके से, साउंड अलग तरीके से, आपकी गाड़ी अलग तरीके से। तो यहाँ तीसरा पॉइंट जो लिखा है दैट इज क्रूशियल, दैट साउंड वेव अकर्स ओनली इन मटेरियल मीडियम, जैसे एयर में, वाटर में या कोई और मीडियम में। तो जो मीडियम है वो अपने आप में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है और उस फ्रेम में अलग अलग चीजों की अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। और उन वेलोसिटी के हिसाब से ही हमने ऑब्जर्वर का मोशन या सोर्स का मोशन डिस्क्राइब किया है। इसीलिए इस फॉर्मूले में ये v और कैपिटल V अलग अलग लिखे गए और कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जब लाइट का डॉपलर इफेक्ट देखेंगे आप, उसमें आप कहेंगे केवल रिलेटिव वेलोसिटी काम कर जाती है। हाँ, कर जाती है रिलेटिव वेलोसिटी काम। क्यों? क्योंकि लाइट को कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, केवल और केवल रिलेटिव। लाइट इस फ्रेम में है या उस फ्रेम में, दैट्स इट। तो डॉपलर इफेक्ट साउंड में तो ऐसा है, लेकिन लाइट में डॉपलर इफेक्ट विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर लुकिंग ओवर हियर, ठीक है। तो अब हम आते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, Doppler effect for photons, Doppler effect for light. So you just keep a screenshot of it. We'll move on to Doppler effect in light. Fine. So Doppler's effect in light we will study in different cases. Like this is case 1, in which we have transverse motion of observer and the source is fixed. So source is fixed and the observer is moving perpendicular to the direction of propagation of light. Okay, you can understand it in this way. So here what you have is a broad source of light. And this light is of, let's say, frequency f. This light is of frequency f. And you are an observer here moving perpendicular to the propagation of direction of propagation. This is direction of propagation of light and this is your direction. Okay? This is observer's direction, this is light's direction. This case is similar to what we have already done when we were deriving expression for time dilation. Wahan, the light was moving like upward direction and the motion of the mirror was in horizontal direction, the transverse motion. तो हम वही concept use कर सकते हैं. There, the dilated time or the time dilation formula was T0 upon under root of 1 minus v square upon c square, where v was the velocity of mirror moving. Here the v is the velocity of this observer moving perpendicular or in transverse direction to the direction of light. Fixed frequency है f. तो यहीं से ही from this formula itself you can derive, at least for the case of transverse motion, the formula for Doppler's effect. क्या? अरे easy सी बात है, 1 upon f is equals to t होता है and 1 upon f naught equals to t naught होता है. ये तो टाइम इंटरवल है, बस हम यहीं से पता कर सकते हैं. यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? आपके पास एक मेजरिंग डिवाइस है, वो मेजर कर रहा है कि अच्छा 690 नैनोमीटर्स, फिर उसे आप स्पीड से डिवाइड देख, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है हमारे पास. सो दैट्स इट. यहां से what you have to do is you have to just take this formula and arrange it in a certain way. जैसे let me just utilize this portion. I can write under root of 1 minus v square upon c square is equals to t naught upon t. उसे यहाँ ले गए, इसे यहाँ ले आए, that's it, t naught upon t. Now I can also write it as 1 upon t is equals to 1 upon t naught under root of 1 minus v square upon c square. और मैं लिख सकता हूं इसे f
which is the observed frequency is equals to the actual frequency. ये f नॉट मतलब ऑब्जर्व नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, f नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दिस इज वाज द एक्चुअल फॉर्मूला व्हिच यू वर लुकिंग एट. देखिए यहाँ पे आप यही देख रहे थे एक्चुअली. यहाँ बस न्यू की जगह हमने f लिखा है, तो आई कैन राइट दैट एज न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ये डेरिवेशन तो बहुत आसान है, बट यू हैव टू रिमेंबर द केस दैट दिस केस is for transverse motion of observer, या हमें कहना चाहिए transverse relative motion. Case 1. Okay, and this is the formula. What? You can write it in form of nu is equals to nu naught into 1 minus v square upon c square, where यहाँ जो c है वो c क्या होगी अब? स्पीड ऑफ लाइट, और जो v है वो v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है, ये हुआ केस 1 when the motion was transverse. Then we'll come to case 2. Let me just show it to you. When we have longitudinal motion, अब longitudinal में दो चीजें हैं, या तो रिसीड कर सकते हैं यानी सोर्स के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, या तो उससे दूर जा सकते हैं या सोर्स के पास आ सकते हैं, करीब आ सकते हैं. तो ये जो है वो रिसीडिंग का केस है. ठीक है, दिस इज अ केस फॉर व्हेन यू हैव रिसीडिंग मोशन. तो केस 2 यानी लॉन्गिट्यूडनल मोशन है लेकिन रिसीडिंग वाला है, उस पे आते हैं. You have longitudinal receding motion. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? That is derive that. ठीक है, so let me just again switch to pen and paper. So this is our source. Okay, and this is our observer, but observer is moving with velocity v. Observer is moving with velocity v. ठीक है, अब एक चीज होगी, छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे. लाइट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड c. तो यहां से जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो यहां पर पहुंच जानी चाहिए थी एट टाइम t, लेकिन नहीं पहुंचेगी. क्यों? क्योंकि उस t समय में, देखिए एक्चुअली हम मान रहे हैं कि एट टाइम t ये इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच जानी चाहिए थी, या लाइट का सिग्नल यहां तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि एट टाइम t में विद वेलोसिटी v ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कवर कर लेगा. और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होगा? अगर स्पीड है v और टाइम दिया है t, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? vt. vt डिस्टेंस कवर कर लेगा. अब लाइट को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. थोड़ी सी हमने क्लेवरनेस दिखाई. एक्चुअल टाइम ये था t, लेकिन क्योंकि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी रिसीड कर रहा है, रिसीड मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये आ गया vt बाय c. vt बाय c कैसे निकाला हमने? पहले देखा कि भाई समय कितना, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने, तो होना चाहिए था इसे यहाँ पे, अब ये हो गई यहाँ, तो इन्फॉर्मेशन उतनी देरी से आएगी, और जितनी देरी से आएगी वो हमने यहाँ लिख लिया, और इसे मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल टाइम t, बड़ा वाला टाइम. फाइन, यहां से अब आप चेक कर सकते हैं दैट यू हैव t इज इक्वल्स टू t कॉमन, और ये हो जाएगा 1 प्लस v बाय c, है ना. और t को हम प्रॉपर टाइम से अगर रिलेट करें तो यू कैन राइट एज t नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस v अपॉन c. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसके बावजूद अगर आप देखें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से तोड़ना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज दिस, दैट टी इज इक्वल्स टू टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी एंड 1 प्लस वी बाई सी, और ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक 1 प्लस वी बाई सी चल रहा है. ठीक है, आई कैन मेक इट लाइक दिस. कैसे? अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर इजी है, वही वाला दोबारा से आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आसानी क्या रहेगी? अब एक स्क्वायर रूट से ये वाला 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी कैंसिल हो जाएगा इससे. देखिए तो फाइनल बचा आपके पास t इज इक्वल्स टू t0 बड़ा वाला अंडर रूट
1 प्लस वी बाई सी, ऊपर क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं है, एंड नीचे 1 माइनस वी बाई सी। यू आर लेफ्ट विद दिस। और अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी में बदलना चाहें तो इट विल बिकम व्हाट, फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, कंटिन्यूसली डू दिस डेरिवेशन, 1 अपॉन एफ, तो टी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ, टी नॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ नॉट, और ये अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। लेकिन ये अच्छी दिखने वाली एक्सप्रेशन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट एक्चुअली एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। तो ये फॉर्मूला हुआ लॉन्गिट्यूडनल के केस 1 का। लॉन्गिट्यूडनल मोशन, लॉन्गिट्यूडनल रिसीडिंग मोशन, रिसीडिंग मतलब दूर जा रहा है, तब फ्रीक्वेंसी दिखाई देनी चाहिए थी एफ नॉट, लेकिन दिखाई देगी एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला केस 2 का ए पार्ट हुआ, तो आई विल से दैट दिस इज केस 2 ए पार्ट। फाइन, इसी तरीके से बस यहां थोड़ा सा बदलाव करना होगा, यू कैन ऑल्सो गेट केस 2 का बी पार्ट। लेट मी जस्ट स्विच इट ओवर। तो आप यहां देख सकते हैं इन दिस फॉर्मूला, बस f को न्यू से रिप्लेस कर दीजिए, न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी फॉर रिसीडिंग केस। अब चेंज करते हैं, लेट अस गो ऑन टू द अप्रोचिंग केस। अप्रोचिंग केस मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, नाउ द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, दैट वी कैन इजीली डू। सो दिस इज केस 2b, longitudinal approaching motion. Okay, here what had happened is this is our source of light, and our observer is moving towards this source with the velocity v. तो हुआ क्या कि जो चीज t समय में आनी चाहिए थी उससे पहले ही आ गई, है ना, मैंने पहले ही रास्ता कवर कर लिया। तो कितनी पहले आई, अगर t समय में विद वेलोसिटी v vt डिस्टेंस कवर हुआ तो इंफॉर्मेशन यानी लाइट को आने में इतना समय लगेगा, v बाई सी इंटू टी। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल समय इतना लगा। अब यहां से ही हम लोग शुरू करें तो आई कैन राइट इट एज टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी बाई सी, और फर्दर अगर हम इसे चेंज करें तो इट विल बिकम एक्चुअली टी इज इक्वल्स टू टी नॉट। ओके, सो अगेन वही वाली ट्रिक, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी। अब 1 माइनस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, t इज इक्वल्स टू टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। फिर से फ्रीक्वेंसी में जब आप चेंज करेंगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। और इसे हम प्रॉपर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, f is equals to f naught under root of 1 plus v by c, let me just check, upon 1 minus v by c। ये केस 2b हुआ। ठीक है, तो यू कैन जस्ट get this one where it is, yeah, बस f को न्यू से रिप्लेस करना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सो वी हैव ऑल द थ्री केसेस विद अस, ट्रांसवर्स मोशन के लिए, लॉन्गिट्यूडनल मोशन के लिए अगर वो एक्स वाई डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द सोर्स या अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रही है, तो आप इसका एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, व्हेन इट इज मूविंग नीदर द परफेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन नॉर द परफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो दोनों चीजें आप यू कैन डू दैट। ओके, अब इसी चीज पर आधारित एक छोटा सा सवाल है हमारे पास, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। सो बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट write down the Doppler's shift formula for all cases on a sheet of paper.
So let us do that first. Okay, so I have all three formulas right now with me, तो उसे लिख लेते हैं. Yeah, so we have number one for transverse motion, perfect transverse motion, it will become nu is equals to nu naught. For perfect transverse motion, it will be nu is equals to nu naught under root of 1 minus v square upon c square, where v is velocity of observer, c is speed of light. ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट केस. फिर आते हैं 2a पर, जो कि रिसीडिंग लॉन्गिट्यूडनल मोशन है. Receding longitudinal motion. अब receding longitudinal motion में what was the formula we derived? For receding case, the formula we derived was this: nu is equals to nu naught under root 1 minus v by c upon 1 plus v by c. ठीक है, तो ये इसमें यहाँ ब्रैकेट है, याद रखिएगा. मोस्टली पीपल एक्चुअली मेक मिस्टेक्स. They do 1 minus v पूरे का divide by c, not that. Then we have 2b, which is approaching longitudinal motion. उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी. ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले को आप फ्रेम कर लीजिए, रख लीजिए, याद कर लीजिए. CT1 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डू वन सिंपल क्वेश्चन एंड वी विल जस्ट क्लोज फॉर द डे. द क्वेश्चन इज दिस: A driver is caught going through a red light. यानी उसने सिग्नल जंप किया. गलत बात होती है, सिग्नल जंप नहीं करना चाहिए. लेकिन ड्राइवर इज अ फिजिक्स स्टूडेंट, वो क्लेम करता है कि सर देखिए एक्चुअली हुआ ये कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो कि रेड लाइट होती है ना, जिसकी की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है 4.80 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, मुझे इसकी बजाय ग्रीन लाइट दिख गई 5.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. जज ने कहा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप फिजिक्स से बिल्कुल सही प्रूव दिया है कि यू आर गोइंग दैट फास्ट और स्पीड की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई. नहीं हुई, 4.8 रेड लाइट नहीं दिखी आपको, आपको ग्रीन लाइट दिख गई 5.6 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है. लेकिन जज ने कहा कि अब आप एक काम कीजिए, जेल वगैरह मत जाइए, लेकिन जिस स्पीड से आप जा रहे थे वैसे स्पीड लिमिट थी 80 किलोमीटर पर आवर. 80 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी आपकी स्पीड थी, जैसे मान लीजिए 81 किलोमीटर थी तो 1 रुपया दे देना, 82 किलोमीटर थी तो 2 रुपए दे देना, 83 किलोमीटर पर आवर थी तो 3 रुपए दे देना. इस तरीके से पैसे दे दीजिएगा. तो अब हमें बताना है कि महाशय को कितना फाइन सबमिट करना पड़ेगा. तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि लाइट सामने है, हम ऑलमोस्ट सामने मान के चलेंगे, और ड्राइवर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचिंग मोशन. तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचिंग मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एग्जैक्टली द थर्ड वन. सो वी विल यूज द फॉर्मूला. सो पहले मैं, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कुछ चीजें लिखनी है हमें कि एक्चुअल न्यू नॉट जो है वो है 4.80 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. और जो ऑब्जर्व न्यू नॉट या न्यू है वो है 5.60 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. ओके, ये दो वैल्यूज नोट कर लीजिए. फाइन वगैरह हम देख लेंगे बाद में. 1 रुपए से फाइन लगाना है, तो हमें अभी फिलहाल देखना है, स्पीड निकालने की कोशिश करनी है. Let me just switch over to pen paper mode again. हाँ, फाइन. तो न्यू नॉट और न्यू हमें पता है. सी तो ऑलरेडी हमें पता होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है. सो स्पीड ऑफ लाइट भी लिख लीजिए. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अभी हम मीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकाल रहे हैं, बाद में जब स्पीड आ जाएगी तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे. अभी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से. चलिए, प्रॉब्लम है ये कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट्स इट. तो मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला अप्रोचिंग वाला यूज करना है, बिकॉज द ड्राइवर वाज मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, है ना, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. फाइन. कार ड्राइव कर रहे थे रॉकेट में.
So we will use the formula nu is equals to nu naught under root of 1 minus, क्योंकि अप्रोचिंग है तो ये 1 प्लस v बाई सी अपॉन 1 माइनस v बाई सी होगा, वेयर v इज स्पीड ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ कार. ठीक है, तो यहाँ से यू हैव टू फाइंड आउट v क्या होगा, तो जस्ट सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना होगा. बट फॉर दैट वी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ jumbling up of this formula. So let me just write nu square upon mu naught square is equals to c plus v upon c minus v. Okay, nu square upon nu naught square is equals to, देखिए c plus v upon c और c minus v upon c का होल स्क्वायर कर लिया तो it goes like this. ये जम्बलिंग अप हो गई, और इसको जम्बल करने के बाद जो फॉर्मूला you would see will be something like this. Let me just show it to you. It will become like if you apply componendo dividendo, और यहाँ पे let us do that. If you can come to this formula, v is equals to c bracket में nu square minus nu naught square upon nu square plus nu naught square from this position. Okay, so that you can do as a homework. You just have to apply componendo dividendo और इसको -1 से multiply -1 करना है on both sides, then you can get it. Anyways, so this is the formula which you can use. So that's not that tough. तो velocity आपकी total हुई कितनी? 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. इन सब में तो 5.4 का मल्टीप्लाई 10 to the power 14 का मल्टीप्लाई है, बट वी कैन नेग्लेक्ट दैट. देखिए ऊपर नीचे ही तो है, so in this formula you can neglect that. You have v nu is equals to 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर, और न्यू स्क्वायर फिर से 5.6 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर. ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आपकी जो स्पीड आनी चाहिए दैट शुड बी नियरली इक्वल्स टू 4.6 into 10 to the power 7 meter per second. 4.6 into 10 to the power 7 meter per second. फाइन. इतनी स्पीड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल फैक्टर जो आप 3600.1818 उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यू विल गेट दिस फाइनली. अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो यू विल गेट नियरली 1.65 into 10 raised to the power 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक, कितने रुपए देने थे? जितनी भी स्पीड क्रॉस की है 80 किलोमीटर के ऊपर उतने रुपए देने थे. तो 10 raised to the power 8 कितना हो गया? लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट. तो देखिए 165, 2 जीरो तो इसको हटाने में चले जाएंगे, बाद के 6 जीरो और हैं तो वो लगा दीजिए, और माइनस इसमें से 80 रुपए कर दीजिए. ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट. 80 रुपए जरूर हटा दीजिए. ये उस बंदे का फाइन हुआ. ओके, seems like that the judge himself was professor of physics. Okay, so it was an interesting question right from your book. As an example it is given, and that will become the fine. कितना हुआ ये? Ones, tens, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 करोड़, 100 करोड़. ये करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए. यही हुआ ना? 50 लाख या 16 करोड़ 50 लाख माइनस 80 कर दो तो इतने रुपए देने होंगे एज फाइन. ठीक है, सो your task today will be how you can reach from this formula to this formula. Point number 1, you have to anyways make the summary of this lecture as well, and that's it. These two tasks are given to you for today's lecture. Thank you so much all of you.